Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the best reward. Learning objectives. To recognize how to put effort to achieve something valuable. Good habits and punctuality lead to success and happiness. Warm up. Observe these pictures given below. Which of these do you agree with and why? Discuss with your friend and tick the right option. Time is very important because it tells us when to do our things. You should wear a messy uniform. School timing should be lesser. We should be allowed to skip our schools. You should wake up late in the morning. We should only play with our mobile phones. You should take an hour to complete your meal. There should be more time for sleeping. बच्चों पहले तो आपको ऊपर कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है और आप किस पिक्चर से एग्री होते हो उस पर टिक लगाना है और क्यों एग्री होते हो ये आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को भी आपको टिक लगाना है और इन पॉइंट्स को भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Namit used to get up only after his parents shouted at him many times. He was always late for breakfast and school. He used to be the last one to get to playground. He used to fail in all his tasks. He was very lazy and slow. बच्चों ये कहानी है एक बॉय की जिसका नाम है नमित. वो हमेशा लेट उठता था और उसकी मम्मी जब उसे उठाने आती थी उस पर शाउट करती थी तभी वो उठता था. इसी तरह से उसके सारे काम जो होते थे वो डिले हो जाते थे. वो स्कूल लेट पहुंचता था, स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे भी वो लेट पहुंचता था और सारे सब्जेक्ट में सारी स्टडीज़ में भी वो फेल हुआ करता था. As months passed by, he became lazier. He would eat a small bowl of rice for half an hour. He would always get punishment from his principal for being late. He would write half a page the whole day. All his teachers were worried about him. His principal too couldn't do anything. So one day he called Namit's father and warned Namit in front of his father. If you continue to be lazy, you will have to study in the previous class. अब नमित जो था वो इतना लेजी था कि उसके सारे काम जो थे वो धीरे धीरे हुआ करते थे, सारे काम उसके पेंडिंग रहा करते थे, जिससे उसके टीचर्स जो थे वो काफ़ी परेशान थे और हमेशा वो अपने टीचर से अपने प्रिंसिपल से पनिशमेंट लेता रहता था. उसे किसी न किसी बात के लिए पनिश किया जाता था, चाहे क्लास में लेट होने के लिए, चाहे होमवर्क ना करने के लिए. तो एक दिन उसकी आदतों से परेशान होकर प्रिंसिपल ने उसके फादर को अपने ऑफिस में बुलाया और उसके फादर के सामने ही नमित को कहा कि अगर तुम अच्छे से स्टडीज़ नहीं करोगे, अपनी स्टडीज़ में ध्यान नहीं दोगे तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे. Let me answer. When do you wake up in the morning? How much time do you take to eat your meal? बच्चों इनका आंसर जो है आपको देना है कि आप मॉर्निंग में कब उठते हो और अपना खाना खाने में, अपना मील खाने में आप कितना टाइम लगाते हो. When Namit and his father went back home, Namit's father thought of an idea. He called Namit and said softly, "My dear boy, you are good and intelligent, but you are lazy. If you change yourself, I will give you a gift. If you continue to be lazy, you will become a beggar and nobody will care for you. I know you can succeed. If you are punctual for only 1 week, I will get you new sports kits." अब उसके फादर जो थे घर आकर उससे बात करते हैं, वो उस पर स्कोल्ड नहीं करते, उस पर चिल्लाते नहीं, उस पर शाउट नहीं करते, वो आराम से उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि नमित अगर तुम इसी तरह से लेज़ी रहोगे, अपनी काम पूरे नहीं करोगे, बड़ों की बात नहीं मानोगे तो तुम एक दिन बड़े होके क्या बन जाओगे, बेगर बन जाओगे. और वो कहते हैं मैं जानता हूँ तुम इंटेलिजेंट बॉय हो, तुम एक स्मार्ट बॉय हो और तुम अगर अच्छे से काम करोगे, लेज़ीपना छोड़ दोगे तो तुम एक दिन बहुत अच्छे इंसान बनोगे. अब वो उसे लालच भी देते हैं कि अगर तुम पास हो जाओगे अच्छे नंबर से तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, गिफ्ट दूंगा. Namit was happy. All his friends had their own sports kits. No one gave him a chance to play with their sport equipment. अब उसके फादर ने उसे क्या गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया, उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हें स्पोर्ट्स किट दूंगा. ये सुनकर नमित जो है वो बहुत
खुश हुआ क्योंकि उसके पास कोई स्पोर्ट्स किट था ही नहीं, उसके सारे फ्रेंड्स के पास स्पोर्ट्स किट था और वो लोग उसको अपने साथ खिलाते नहीं थे। तो वो खुश हो गया था ये जान के कि मेरे पास अपना खुद का क्या होगा, स्पोर्ट्स किट होगा। फैक्ट फाइंडर, a giraffe only needs 1.9 hours of sleep a day, whereas a brown bat needs 19 hours of sleep a day। बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट हमें बताया गया है कि जिराफ जो है उसको सिर्फ 1.9 आवर्स ही चाहिए होते हैं, मतलब करीब 2 घंटे उसे चाहिए होते हैं सोने के लिए, जबकि बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, उसे 19 घंटे की स्लीप लगती है। So Namit worked hard, he became regular in school. He wore clean uniform, he quit the company of bad boys, he ate his food at the correct speed, he did well in class test, he also played with his friends। अब बच्चों नमित ने वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी। वो जो गंदे बच्चे हुआ करते थे उनकी उसने कंपनी भी छोड़ दी, ठीक है, और अपनी स्टडीज़ में वो ध्यान देने लगा और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के साथ वो खेला करता था। One day came when he topped his class. His father and mother were happy. His father bought him a branded sports kit. That was the happiest day of his life. तो बच्चों एक दिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या पता चला कि नमित जो है वो अपनी क्लास में उसने टॉप किया है। अपनी मेहनत और अपनी लगन से उसने अपनी स्टडीज़ में अव्वल आया, ना सिर्फ पास हुआ बल्कि अपने पेरेंट्स को उसने फर्स्ट होके भी दिखाया। तो उसके फादर जो थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने भी अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा किया। तो वो जो दिन था वो उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट दिन था, क्योंकि एक तो क्या हुआ, वो तो फर्स्ट आ गया था और दूसरा उसके फादर ने उसे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल की नज़र में भी एक अच्छा बच्चा बन गया था। Do you know that an institute in Colorado created a clock so accurate it won't lose gain a second in 20 million years? Amazing, right? बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट हमें बताया गया है कि कोलोराडो में एक वॉच है, एक वॉल क्लॉक है जिसका टाइम जो है वो बहुत ही एक्यूरेट है और काफ़ी साल से उसका टाइम जो है वो एक्यूरेट ही है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। रिसर्च एंड एनालिसिस, time plays an important role in the life of humans, especially for children. Many tools and ways have evolved to measure time. With the help of the internet, find out the following questions. Name of the different machines to measure the time. Who invented a clock? When was the first clock invented? बच्चों टाइम जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर आपको गूगल करके या नेट पे सर्च करने हैं, ठीक है। नाउ हेल्थ एंड वेलनेस, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ। अ गुड स्टूडेंट ऑलमोस्ट सर्टेनली मैनेजेस हिज और हर टाइम विदाउट वेस्टिंग इट। Nowadays, there are many different areas and themes covered in education. Spending time on extracurricular activities like sports and games is also essential. Time management is a skill that allows you to make the most of your time and requires continuous practice to enjoy the reward. Students should avoid squandering time on activities that offer little advantage. Most likely, it would be a waste of time. You can free up time for other valuable pursuits by eliminating unnecessary tasks. बच्चों यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि हमें अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको हर काम का टाइम जो है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। आप ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, आप ज़्यादा देर तक खेल नहीं सकते, आप ज़्यादा टाइम तक खा नहीं सकते। इस तरह से आपको टाइम जो है वो मैनेज करके चलना पड़ता है। तो आप एक टाइम टेबल बना सकते हो, आपको इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने टाइम तक आपको खेलना है, इतने टाइम तक आप खाना खाओगे, इतने टाइम तक आप टीवी देखोगे। इस तरह से अगर आप टाइम को मैनेज करके चलोगे तो आप एक अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।